پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت دی ہے جس سے کہ ہم اگر پوری طرح ہم کوشش کر کے فائدہ اٹھاتے تو 75 سال میں وی وڈ ہیو بین دا موسٹ گوئنگ کنٹری ان دا ورلڈ. باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عمل کے علاوہ کچھ نہیں. گو کہ وقت بہت ضائع ہو گیا، بٹ اسٹل وی کین کمپنسیٹ فار دا لاسز آف دا پاسٹ. گزشتہ 4 سال میں عوامی فلاح کا ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا گیا. ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے. ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. پولیس اور دیگر اداروں نے مل کر ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. سائفر سے متعلق تحقیقات، ایف آئی اے نے سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو طلب کر لیا. سائبر کرائم ونگ نے شاہ محمود قریشی کو 1 نومبر دن 12 بجے طلب کیا ہے. عمران خان کا جھوٹ اور بے بنیاد بیانیہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا. کسی جتھے کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. بری نیت سے آنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. لانگ مارچ والوں کے لیے ریڈ زون ریڈ لائن ہے. کسی ٹولے کی حماقت، تکبر اور پاگل پن کی وجہ سے قوم کو غربت کی جانب نہیں دھکیلنے دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. قوم نے آئین چکن فورن فنڈڈ فتنے کا خونی مارچ مسترد کر دیا. عوام نے فتنے کی ہوس اور اقتدار کی بھینٹ چڑھنے سے انکار کر دیا. نوجوان فرح کوکی، بشرا بی بی اور توشہ خانہ چور جیسے ڈاکوں کے محافظ نہیں بن سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. عمران خان لانگ مارچ اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. ارشد شریف کو عمران خان نے ملک سے باہر بھیجا. ویزا ختم ہونے پر دبئی سے کینیا بھیج دیا. اگر تھریٹ تھی تو انہیں خیبر پختونخوا میں رکھتے. یہ صبح کو گالی دیتے ہیں اور رات کو ترلے منتیں کرتے ہیں. آج بھی عمران نیازی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. وفاقی وزیر شیری رحمان. پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی. عمران خان اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی معیشت، اقدار اور روایات سے کھیل رہا ہے. اداروں اور ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے. رات کو نوکری کی درخواستیں دیتا ہے اور دن کو دھمکیاں دیتا ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف. یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ گالا ویک ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی لانگ مارچ کے علاوہ کچھ نہیں. سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. لانگ مارچ میں عمران خان اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آتا؟ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری. انہوں نے لانگ مارچ کرنا، دکانیں بند کرا دی ہیں. اب کیا کریں، گھر ہی جائیں گے اور کیا کریں گے. انہوں نے کون سا ہمیں کھانے کے لیے دے دینا. آج ساری مارکیٹ بند کر دی ہے، صبح کے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. پتہ نہیں کیسا یہ لانگ مارچ ہے. یہ ٹائیگر قوم سے جا رہی ہے اور زبردستی دکانیں کاروباری زندگی مخلوط کر رہی ہے. یہ جو انارکی پیدا کر کے یہ دکانیں بند کروانے سے معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ دھرنا جو ہے نا یہ ان کے اپنے مفادات کے لیے ہے. اس میں غریب عوام اور پاکستان کا کوئی مفاد نہیں ہے. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر. مارچ کے راستے میں آنے والے کاروباری مراکز صوبائی انتظامیہ نے زبردستی بند کرا دیے. کاروباری طبقے میں شدید اضطراب. اپنی سیاست کی خاطر ملکی معیشت کو داؤ پر لگانا مناسب نہیں. تاجر رہنما. سیلاب متاثرین کی بحالی کا عزم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی متاثرین کی بحالی کے لیے متعلقہ اداروں کو دستیاب وسائل ہنگامی بنیادوں پر استعمال میں لانے کی ہدایت. اقوام متحدہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے تیار کی جانے والی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ پر بریفنگ. سیلاب سے $30 بلین سے زائد کا نقصان ہوا. محدود وسائل کے ساتھ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بحران سے نمٹ رہے ہیں. متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو بیج مفت فراہم کیا جا رہا ہے. وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال. وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. مختلف امور پر بات چیت. دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. کویت قیادت کا یوم سیاہ منانے پر اظہار تشکر. پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جانا بھارت کے لیے چشم کشا ہے.
मकबूजा कश्मीर के साथ नौआबादियाती जैसा सलूक किया जा रहा है। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मजीद क्या तफसील है, बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में पीएसपी के 48वीं एसटीपी बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका साझा है, हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान को असल मकाम दिलवाने के लिए हमें अनथक मेहनत और अपने अमल में इखलास लाना होगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर वो नेमत दी है जिससे कि हम अगर पूरी तरह हम कोशिश करके फायदा उठाते तो 75 साल में वी वुड हैव बीन द मोस्ट गोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बातों से नहीं, नारों से नहीं, तकरीरों से नहीं, अमल के अलावा कुछ नहीं। गो के वक्त बहुत ज़ाया हो गया, बट स्टिल वी कैन कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेस ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद ग्रेट स्पीड प्रोवाइडेड वी हैव दैट विल टू डू। हर चीज है इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी का कल्ला कमा करने और अमन व अमान के क़ियाम में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। कौम के सपूतों ने मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया, तारीख उसे सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपने आम शहरी को, माओं को, बच्चों को, ताजरों को, डॉक्टर्स को, बेवा को, यतीम को आपने दहशत गर्दों, चोरों और डकैतों से बचाने के लिए, कातलों से बचाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी आपने कुर्बान कर दी और पाकिस्तान के अवाम को अमन नसीब किया और उसके लिए आपने अपने खून की कुर्बानी दी। ये कुर्बानी आपकी रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस समेत दीगर शोबों में ख़वातीन की शमूलियत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पुलिस को अहद हाजिर के तकाज़ों से लैस करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल पुलिस एकेडमी के एहलकारों की तनख्वाहें पुलिस के दीगर इदारों के बराबर लाने का भी ऐलान किया। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी एडी ख्वाजा ने कहा कि इदारों की आला कारकर्दगी के लिए तरबियती इदारों का किरदार कलीदी है। NPA इस हवाले से मुल्क का सबसे बड़ा तरबियती इदारा है। वज़ीर आज़म ने खसूसी तरबियती प्रोग्राम के 48वीं बैच के नुमाया कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान में एजाज़ात तकसीम किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। तकरीब के आखिर में मार्च पास्ट हुआ। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। बाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एकेडमी के नए तामीर होने वाले ऑडिटोरियम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने साइफर से मुतालिक तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का झूठ और बेबुनियाद बयानिया अवाम के सामने आ चुका है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहां की जमहूरियत और कहां की रियासत। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे मालिक उमर। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतजाज और धरने से मुतल्लिक तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। मुअय्यन करदा मकाम पर एहतजाज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जो जिम्मेदारियां अदालत ने हमारे ज़िम्मे लगाई हैं। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ
कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब किसी इदारे पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की जाए तो इसका हक है कि वो अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखे। किसी भी डिपार्टमेंट अदारे का कोई भी फ़र्द जिसके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जाएं, उस अदारे का सरबराह जो है वो इजाज़त दे, उससे इजाज़त लेके तो वो अपना मौक़िफ़ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो आवाम के सामने लाने का हक भी रखते हैं और लाना भी चाहिए। कल की जो गुफ्तगू DGISI ने और DGISPR ने की है उससे आवाम को बड़ी जो है वो आगाही हासिल हुई है। सारे इल्ज़ामात जो हैं वो कल आवाम की नज़र में जो है वो बिल्कुल रद्द हो गए। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रावलपिंडी बार कौंसिल में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वुकला से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस का क़याम वुकला के लिए बड़ी सहूलत है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितना मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने और कौम को गुमराह करने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने कहा कि लॉन्ग मार्च वालों के लिए रेड जोन रेड लाइन है। मुख्तस करदा जगह से आगे बढ़ने और खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के शुरू किए गए मार्च से दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की जानिब से जारी करदा मुतल्लिका जगहों पर एहतजाज की हर शहरी को इजाजत है, लेकिन रेड जोन हमारी रेड लाइन है, इसको किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। आप जब एक मुल्क दुश्मन एजेंडा अपनाए हुए हैं, इस बात पे तुल चुके हैं कि आपने इस मुल्क को फितने और फसाद के हवाले करना है, अफरा तफरी और अनारकी में लेके जाना है, तो फिर आपको पता है कि कौन से अदारे और कौन से जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो आपकी राह में हायल होंगी। इमरानी फितने का जो खमीर जो है इस जो है वो सोच पे रखा गया है कि जो हमारे साथ हो वो दुरुस्त है। अगर हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जो है वो जेल काट के बरी हो तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। वज़ीर दाखिला ने आज़म सवाती के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि FIA ने आज़म सवाती के खिलाफ दुरुस्त मुकदमा दर्ज किया। अब ये ट्वीट इन्होंने जो है वो किया, इसमें 2 अदारों को मलाइन किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। जितने दिन ये FIA के पास रहे इन्हें इनकी हैसियत मकाम के मुताबिक इज्जत और एहतराम के साथ जो है वो डील किया गया। सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है वो आप बैठ के जो है वो टीवी पे करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का ये फर्ज है कि इदारों के सरबराहान और इदारों में काम करने वाले लोगों का दिफा करें। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर फैसला हुआ है कि इदारों का दिफा हुकूमत करेगी, लेकिन जिस पर इल्जाम लगाया जाएगा वो सच खुद बताएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बोले जाने वाले मुसलसल झूठ को अब बर वक्त बेनकाब करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के ट्वीट पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हमारे नौजवान फराह गोगी, बुशरा बीबी और तोशाखाना चोर जैसे डाकुओं के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान अवाम के लिए सिवाय लॉन्ग मार्च और झूठ के कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि अरशद शरीफ को खुद इमरान खान ने मुल्क से बाहर भेजा, वीज़ा ख़त्म होने पर दुबई से कीनिया भेज दिया। अगर अरशद शरीफ को कोई खतरा था तो इमरान खान उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ही रखते। उन्होंने कहा कि ये सुबह को गाली देते हैं और रात को तरले मिन्नतें करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ आज भी साजिश कर रहा है। हुकूमत में रहते हुए उन्होंने फर्जी बयानियाँ क्रिएट किया। झूठ इतनी सीना जोरी से, अफसोस से मैं कहूँगी, बोला जाता है कि सुबह आपको गाली देते हैं, रात को आप ही से तरला कर रहे हैं। मुल्क को तो वो कुर्बान करने बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी इक़्तिदार की बेलौस हविस में कुछ भी करने तैयार हैं। आपने कभी सोचा, पीछे मुड़ के पूछा कि मुल्क को किस खतरे की नहज पे आप छोड़ के गए? आप लाए, वहाँ तक मुल्क को पहुँचाया, IMF से झूठ बोल के, दुनिया में हर जगह झूठ बोल के। हमारे खिलाफ साजिश हुई, आपने तन्हा कर दिया मुल्क को।
वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरान खान रात के अंधेरे में नौकरी की दरखास्तें देता है और दिन के उजाले में धमकियां देता है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान अपने इक़्तिदार की हवस के लिए मुल्क की मईशत, अक़दार, मुआशरे, रिवायात और मजहब से खेल रहा है। जो गुफ्तगू ये इनकलाबी करता था, इनकलाब ऐसे होते हैं, इनकलाब मईशत को तबाह करने के लिए होता है, इनकलाब आइन की पामाली के लिए होता है, इनकलाब अदारों में बगावत के लिए होता है, इनकलाब रियासत को कमजोर करने के लिए होता है। कौम को फायदा तब था जब 1 करोड़ नौकरियों की जगह 2 करोड़ नौकरियां आप देते पाकिस्तानी कौम को, आप मईशत को संभाला देते। हमने जो जद्दोजहद की थी और कर रहे हैं हम आइन की पासदारी के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च दर हकीकत माफी मार्च है। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनकलाब सरकारी मुलाजिमीन को इकट्ठा करके नहीं आ सकता। तफसील जानते हैं ताहिर कलासरा से। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च पर सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान बंद दरवाजों में जिनके पांव पकड़ते हैं, बाहर आकर उन्हीं के गले पड़ते हैं। लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफी मार्च है। खान साहब माफी मांगना चाह रहे हैं कि मुझे माफ कर दें। इनकलाब जो लाने वाला है, अंदाजा लगाएं उसके किरदार का। लोगों से हलफ लेता फिर रहा है कि इनकलाब में आप आए जी, लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, तुम्हारे बच्चे आए। कहाँ है पिंकी पीरनी आज इसके मार्च में? वो ज्यादा इज्जतदार है और लोगों की घरवालियां और बहनें जो है वो इज्जत वाली नहीं है। कहाँ है कासम और सुलेमान और टेरियान? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? लोगों के बच्चे जो हैं वो उनको सड़कों पर तुम लेकर और अपने बच्चे तुम्हारे लंदन के मोहल्लों में बैठे हो। जगह जगह से तुम्हारा किरदार जो है वो उस पर दाग है और तुम कहते हो तुम बातें इनकलाब की करते हो। ये इनकलाब नहीं ला रहे, ये तुम अपना जाती इक्तदार और कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल है जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। ना तोशा खाना का फैसला आता, ना फॉरेन फंडिंग का आए, ना नजायज औलाद का फैसला हो, ना हीरो की अंगूठी का फैसला हो, ना फरा गोगी और आंटी पिंकी पीरनी के जो करतूत हैं वो बाहर आए और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए ताकि लोगों को सच पता ही ना चले। तलाल चौधरी ने कहा कि पूरा तोशा खाना खा जाने वाले शोधा और इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ताहिर करासरा, PTV न्यूज़। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के रूट में आने वाले कारोबारी मराकज़ को इंतजामिया की तरफ से बंद करा दिया गया है, जिसके बायस माशी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि ज़ाती मफाद और अपनी सियासत की खातिर मुल्क की मईशत को दाव पर लगाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। उन्होंने लॉन्ग मार्च करना, दुकानें बंद करा दी हैं। अब क्या करें, घर ही जाएंगे और क्या करेंगे। इन्होंने कौन सा हमें खाने के लिए दे देना है? जो गरीब आदमी है उसने तो यही कमाना, यही खाना। अब उन्होंने मार्केट बंद करवा दी, घर जा रहे हैं बस। आज सारी मार्केट बंद कर दी, सुबह के बंद करके बैठे हुए हैं। अगर बैठते हैं तो वो कहते हैं क्यों बैठे हुए हैं आप? पता नहीं कैसा ये लॉन्ग मार्च है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये PTI अपने जाती मुफादात के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। इसमें मुल्क की कोई बका, मुल्क का कोई फायदा नहीं। ये जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई हुई है, चंद इलाकों में ये टाइगर फोर्स जा रही है और जबरदस्ती दुकानें कारोबारी जिंदगी मखलूस कर रही है। ये जो अनारकी पैदा करके ये दुकानें बंद करवाने से मुआशरे का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये धरना जो है ना, ये इनके अपने मुफादात के लिए है। इसमें गरीब अवाम और पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारों को दस्तयाब वसाइल हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल में लाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की पायदार बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और एशियाई तरक्याती बैंक जैसे बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदार इदारों की मुआवनत से तैयार की जाने वाली पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर बराए मौसमी तब्दीली शहरी रहमान, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल और एडिशनल सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाफी $30 मिलियन के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि दुनिया को सैलाब से जन्म लेने वाले अलमिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की अपील में हिस्सा डालना चाहिए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुराक, सेहत और रिहाइश के चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और शेरी रहमान ने कहा है कि सैलाब से $30 अरब से ज़्यादा का माशी नुकसान हुआ और तामीर नौ के लिए $16 अरब की ज़रूरत है। महदूद वसाइल के साथ हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी एजेंसियों के साथ मिलकर बढ़ते हुए बहरान से निपट रही है। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब के नतीजे में $15.2 अरब का माशी नुकसान और $14.9 अरब का नुकसान इसके अलावा है। उन्होंने कहा कि अमीर मुल्कों की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इस वक्त पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, बढ़ती हुई गुर्बत, खुराक की कमी और सर्दियों की ठंड जैसे चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, आलमी बरादरी ताउन करे। UN फ्लैश अपील तकरीबन $860 मिलियन की थी, जिसमें तकरीबन 50% के करीब कमिटमेंट्स अभी आ चुकी हैं। मल्टीलैटरल इदारों की तरफ से मदद लाइन अप हुई है, तकरीबन $2.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसके साथ $1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तकरीबन $5 बिलियन प्लस जो एक्स्ट्रा मल्टीलैटरल से अभी तक लाइन अप हो चुका है। और बाकी अभी तक देखें बायलैटरल लेवल के ऊपर जितने ममालिक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं डोनर्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन अब तक चाइना की तरफ से तकरीबन 1000 RMB, अमेरिका की तरफ से तकरीबन $100 मिलियन आ चुका है। इसी तरह दीगर ममालिक की तरफ से भी है, लेकिन ये सब कुछ था एमरजेंसी रिलीफ के लिए। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शेरी रहमान ने कहा, मौसमियाती तब्दीली को कोई एक मुल्क अकेला नहीं रोक सकता, इस हवाले से सबको मिलकर काम करना होगा। हम 1% कार्बन एमिशंस का हिस्सादार हैं और 80% G20 ममालिक के हैं। के कारखानों ने हमारे आबो हवा की शक्ल बदल दी है जी। और इस सूरत हाल में ये जब हुआ है, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी कोई हमें मांग के दिलवाने की कोशिश नहीं चाहिए। तो बजाय रिस्ट्रिक्शंस के बगैर हमें बजाय में लेक्चर्स दिए आसानी पैदा करें। इससे पहले सैलाब के नुकसानात और बहाली प्रोग्राम की जरूरियात पर रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जो दुख और तकलीफ देखी वो दिल को हिला देने वाली है। खवातीन, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान तले बका की जंग लड़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शेरी रहमान ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में तरक्याती पार्टनर्स, NDMA, वफाकी और सूबाई हुकूमतें और दूसरे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया के साथ करीबी राब्ते में है। दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ने कीनिया की पुलिस और हुकाम से हकायक हासिल करने के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने पर भारतीय वजारत खारजा के बयान पर सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के FATF से निकलने पर मनफी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियाद पर FATF में कामयाबी हासिल की और तमाम नकात पर अमल दरामद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने भारत की तरफ से 1947 में कश्मीर पर गैर कानूनी फौजकशी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाने पर कश्मीरियों और दीगर ममालिक के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। KMS के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बयान में कहा कि कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाकर अपने मादरे वतन पर भारत के जबरी कब्जे को हरगिज तस्लीम न करने और इसकी फौजी जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की तरफ से यौम सियाह मनाया जाना भारत के लिए चश्मकुशा होना चाहिए।
भारत को उनका नाकाबिले तनसीख हक की खुद इरादियत देना चाहिए। सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने श्रीनगर से अपने इंटरव्यूज में कहा कि भारत 27 अक्टूबर 1947 से कश्मीर के साथ नौ आबादियाती जैसा सलूक कर रहा है, जब इसने जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई करके इस पर बरसगीर की तकसीम के मंसूबे और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुनाफी कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की गैर कानूनी और एकतरफा कार्रवाई कश्मीर को एक कॉलोनी बनाने का घिनौना इकदाम था। मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में अपने नौ आबादियाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइली पॉलिसी पर अमल पैरा है। जम्मू खित्ते में जिला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी के हक में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में भारत पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीर छोड़ दे और अपना नाजायज तसल्लुत खत्म करे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम मजलूम कश्मीरी अवाम से इजहार एकजहती के लिए वेबिनार का इनेकाद किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने नवंबर में जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा से मश तक बहाल करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ने मच से मुसाफिरों को रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए कोयटा पहुँचाने के इंतजाम करने की हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत की। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सिब्बी हरनाई सेक्शन पर 3 माह में रेलवे ऑपरेशन शुरू किया जाए और पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को आमदन बढ़ाने के लिए मनसूबा तैयार किया जाए। वज़ीर इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरज़ादा का कहना है कि मुआशरे में गुर्बत और महदूद तालीमी मौक़े कम उम्री में शादी की अहम वजूहात हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास की तफसील मरियम मलिक से। कौमी कमीशन बराए हकूक़ इत्फ़ाल के ज़ेर एहतमाम कम उम्री की शादियों के हवाले से मशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अरकान शरीक हुए। वज़ीर इंसानी हकूक़ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कम उम्री की शादी की रोकथाम और ख़त्मा इस मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान में जहाँ दूर अफ्तादा इलाका है, आबादी बहुत दूर हैं, स्कूल बनाने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं मिलती फोकल पॉइंट की जहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा आ सकें, तो होता ये है कि फिर वहाँ पे गरीब काश्तकार हैं, हारी हैं, तो वो अपनी बच्चियों को जल्दी मैरिज इसलिए करते हैं कि बोझ समझ के जी बेटी का बोझ उठाना है। रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत 16 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद कोशिशें करने की ज़रूरत है। कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए वज़ारत इंसानी हकूक़ इस सेशन की सिफारिशात को बाकायदा कानून के तौर पर अपनाने के लिए अपना भरपूर किरदार भी अदा करेगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तिजारत सैयद अवीद कमर ने कहा है कि GSP+ के हवाले से नई स्कीम पायदार तरक्की, गुड गवर्नेंस और गुर्बत के खात्मे के बुनियादी मकासद पर तवज्जो मरकूज करेगी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन कमीशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि GSP+ सहूलत बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद रही है और इसने फ़रीक़ैन के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने GSP+ से मुतालिक बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के मौसर नफाज के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। बांग्लादेश के मरकज़ देही तरक्की बराए एशिया पैसिफिक की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आला कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। तफसील बता रही हैं सदफ मलिक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आला कारकर्दगी पर अजीजुल हक देही तरक्की अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड मरबूत देही तरक्की और तखफीफ गुर्बत में शानदार कारकर्दगी पर दिया गया है। ये तरक्की अवार्ड मरकज़ देही तरक्की बराए एशिया पैसिफिक बांग्लादेश की गवर्निंग कौंसिल की मंजूरी से दिया गया। BISP प्रोग्राम का आगाज 2008 में हुआ, जो आज बहुत मजबूत प्रोग्राम बन चुका है। BISP हुकूमत पाकिस्तान का एक फलाही प्रोग्राम है, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद को गैर मशरूत तौर पर नकद रकम फ्राहम की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के तमाम अजला में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 8 मिलियन घरानों को इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो हालिया बारिश और तबाहकुन सैलाब आए, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए 70 अरब रुपए का ऐलान किया। फी फैमिली 25,000 रुपए
तकसीम की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये रकम तकसीम की गई। मुल्क में आने वाले सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 26 लाख से जायद मुतासरा खानदानों को इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद दी गई। बेनज़ीर किफ़ालत के तहत शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए मुस्तहिक घरानों में रकम तकसीम की जा रही है। इसी कारकर्दगी को देखते हुए BISP को अवार्ड से नवाजा गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने OIC और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए अज़रबैजान की हुकूमत के बरादराना जज्बात को सराहा। उन्होंने दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में अज़रबैजान के साथ शराकतदारी को वसी और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने अज़रबैजान की अस्करी क़यादत को पाकिस्तान आइडियाज़ 2022 में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यरजान किर्गिस्तान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं जिन्हें फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के कारोबारी हज़रात के लिए तजारती मौक़े तलाश करके तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी घर से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल नुमाइंदे जुलिन हार्नेस ने मुलाकात की। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसोरी ने कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खूनी होने से मुतालिक फैसल बाउडा के बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ारत दाखिला को बयान का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसी एक पार्टी का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि मुल्क की सियासत को ना उलझाएं और इंतशार फैलाने से गुरेज करें। इससे कबल गवर्नर ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़िरी दी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करने की साजिश है। मार्च की आड़ में इमरान न्याजी पाकिस्तान के आइन और कानून से आज़ादी चाहता है। एक बयान में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हठधर्मी से मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि साबित हो गया इमरान खान की सियासी जिंदगी सरापा मुनाफिकत और झूठ का पलंदा है। बलूचिस्तान में भी अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। कोयटा में छाती के सरतान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील बताएंगे सरफराज शेख। कोयटा में BRSP के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन में छाती के कैंसर से मुतल्लिक़ अवामी शऊर उजागर करने के लिए पिंक रिबन तकरीब का इनेकाद हुआ। ख़वातीन शुराका ने इस दौरान मर्ज़ की पेचीदगियों और इस हवाले से मुतासिरा ख़वातीन को पेश आने वाली मुश्किलात पर खुलकर इजहार ख्याल किया। ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस पर बात करनी चाहिए, उन्हें भी आगे आना चाहिए, ताकि अगर किसी को ये डायग्नोस होती है बीमारी आगे आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में, तो वो उन्हें इस बात का इत्मीनान हो कि ये एक काबिल इलाज बीमारी है। ब्रेस्ट कैंसर जो है एक जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है, तो इससे किनारा कशी ना करें, इससे कतराएं ना, मरीजों से और इससे मुतल्लिक नॉलेज इससे आम करें, घर में डिस्कस करें। ख़वातीन में छाती के सरतान की आगाही मुहिम के दौरान ख़ानदान के मर्दों पर जोर दिया गया कि वो इस काबिल इलाज मर्ज से मुंसलिक बीमारियों का इदराक करें और मुनासिब देखभाल के जरिए ख़वातीन की मदद करें। बरवक्त तशख़ीस के जरिए ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। ज़रूरत है कि माशरे में इस मौजू को ज़ेर बहस लाकर तमाम हिचकिचाहट को दूर किया जाए और शऊर बांटा जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादी की सदारत में फ्लड रिलीफ सरगर्मियों के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी बराए राब्ता का चौथा इजलास हुआ। सैलाब से मुतालिक इमदाद की समरी वर्ल्ड बैंक, ADB, USAID, FCD और यूपी यूनियन, UNRC और IMF के नुमाइंदों के साथ शेयर की गई है। उन्होंने कहा कि तरक्याती शराकतदारों ने तामीर नौ के मरहले के लिए बहाली के मंसूबे की तजवीज़ दी है। समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने सिंध के सैलाब ज़दा ज़िला जामशोरो के इलाके पहलवान खान खोसो का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा मजदूरों से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने सैलाब की तबाहकारियों का जायजा भी लिया। मजदूरों की आलमी तंजीम के प्रोजेक्ट कैश फॉर वर्क के इफ्तिताह के बाद वफाकी वजीर ने कहा कि सैलाब से 36 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। कैश फॉर वर्क के तहत मजदूर अपने घरों की बहाली का काम कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें यौमिया उजरत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मेहनत कशों, मजदूरों और बीमारों को तनहा नहीं छोड़ेगी।
बलूचिस्तान के अजला चमन और सोबतपुर में FC की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। कैंप में 382 बच्चों समेत 821 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने मेडिकल कैंप्स के इनेकाद को सराहा। मुल्क भर में डेंगू वायरस की वार जारी है। आज सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में 258 डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर से 109, गुजरावाला से 37, मुल्तान से 23 मरीजों की तस्दीक हुई है। पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 1152 मरीज जेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 253 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पेशावर में डेंगू के 99 मरीज रिपोर्ट हुए। मर्दान में 58 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची में मजीद 122 अफराद डेंगू का शिकार हुए। हैदराबाद डिवीजन में 38, मीरपुर खास डिवीजन 17, शहीद बेनज़ीराबाद में 3 और सक्खर डिवीजन में 7 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। मजमूई तौर पर सूबे सिंध में 187 अफराद डेंगू के मरज़ में मुब्तला हैं। बलूचिस्तान से डेंगू के 30 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद तादाद 4729 तक पहुँच गई है। 24 घंटे में 12 केस केच से, लसबेला से 11 और गवादर से 7 केसेस सामने आए हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में पहली बार नौज़ायदा बच्चों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं। कराची में आलमी पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बायस बच्चों में खौफनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन की शरह 60% है, जिसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस से बच्चों की बीमारियों से मुतालिक आगाही मिलेगी। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम यौम स्याह मनाया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए काबुल में पाकिस्तान के सफीर सरफराज अहमद ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने कश्मीरी अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। इस तस्वाब राय का जो वादा इनसे किया गया था, इसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत करते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी मौसमी तब्दीली का इजलास CMAC की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 में शिरकत के लिए पाकिस्तान की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को बताया गया कि कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब और नुकसानात के बारे में आगाह किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात ने कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पर हालिया हादसे के मुतासरीन को मुआवजा देने की हिदायत की है। चेयरमैन सेनेटर शहजादा अहमद उमर अहमदजई की सदारत में होने वाले इजलास के दौरान मुस्तकबिल में हादसात की रोकथाम के लिए M9 के अतराफ बाड़ लगाने की हिदायत की गई। इजलास में नेशनल हाईवे सेफ्टी तरमीमी बिल 2022 पर भी गौर किया गया। बरतरफ मुलाजमीन के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास चेयरमैन कादर खान मंदोखेल की सदारत में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के बरतरफ मुलाजमीन के मामलात पर गौर किया गया। कमेटी ने मुलाजमीन के वाजिबात के मसले को हल करने, पेंशन की अदायगी, GP फंड और तनख्वाहें जारी करने की हिदायत की। पंजा साहिब हसन अब्दाल में तकरीबात में शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सीनियर हुकाम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्री हसन अब्दाल में इतवार से शुरू होने वाली मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। ननकाना साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब भी जाएंगे और 1 नवंबर को भारत वापस रवाना होंगे। बलूचिस्तान में जैतून का तेल निकालने का आगाज हो गया है। पंजगूर में तहकीकी इदारे के डायरेक्टर का कहना था कि जमींदारों से 1 साल तक तेल निकालने के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मशीनरी और फ्यूल के अखराजात में महकमा ज़राअत बलूचिस्तान अदा करेगा। बलूचिस्तान में जैतून के 22 लाख दरख्त लगाए गए हैं, जबकि पंजगूर में 30,330 से ज्यादा जैतून के दरख्त हैं। इंटरनेशनल फ्रंट से ये खबर है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दूसरी आलमी जंग के बाद शायद ये खतरनाक तरीन दहाई है। मॉस्को में आलमी पॉलिसी माहिरीन की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के सदर ने कहा कि मौजूदा दौर में हम एक ऐसे तारीखी महाज पर खड़े हैं जिसके आगे शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक, गैर मुतवक्के और सबसे अहम अशरे का सामना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमला पूरे आलमी निज़ाम की तब्दीली का हिस्सा है। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस मगरिब को चैलेंज नहीं करता था, हम अपने वजूद के दिफा का हक हासिल है।
شمالی کوریا نے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا نے جنوب مشرق میں واقع کونوون نامی علاقے سے بحیرہ جاپان کی جانب کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ جاپان حکومت کا کہنا ہے کہ میزائل جاپان کے صنعتی علاقے سے باہر گرے ہیں، وہاں موجود بحری جہاز اور طیارے محفوظ رہے۔ شمالی کوریا نے سال 2020 سے اب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 28 بار تجربات کیے ہیں۔ پاکستان کی پہلی باحجاب ریپر اور بلوچ گلوکارہ ایوا بی کے لیے اعزاز۔ گلوکارہ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی تصویر امریکہ کے معروف ٹائم اسکوائر پر آویزاں کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی 7 خواتین گلوکاراؤں کی تصاویر بھی ٹائم اسکوائر پر آویزاں کی جا چکی ہیں۔ میوزک سٹریمنگ کی ویب سائٹ اسپاٹیفائی نے رواں برس مارچ سے ایکل پاکستان نامی منصوبے کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت ہر ماہ ایک پاکستانی گلوکارہ کی تصویر ٹائم اسکوائر پر آویزاں کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت پہلی بار مارچ 2022 میں پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب کی تصویر ٹائم اسکوائر پر آویزاں کی گئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لے -4، زیارت -2 اور سکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔